استعنا بالله العلي العظيم وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم نار عليا وبرجاء تجدون لك في النوائب كل هم وغم سيجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتصبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها صلوات الشافعين اللهم صل على محمد وآل محمد حسینہ ایمان بزرگان ملت میرا داران عزیز محمد رضا سامعین کرام جناب عباس کے ماتمدار رضا زہرا کے غمخوار اور حسین رسول کا بولا رسول عزیزان ایمان آج شہزادی کے کرم سے اور چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے اور میرے بزرگوں کی دعا اور میرے نوجوانوں کے ساتھ سے آج انجمن پرچم عباس کے جانب سے یہ چوتھی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جو حضرات شروع سے ہی اس وقت مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں اور یک کے بعد دیگر مجلس میں آئے ہیں شہری بھائی، ان لوگوں تک میرا موضوع بالکل اس طریقے سے پہنچ رہا ہے جس طریقے سے دریا میں ایک قطرہ پہنچتا ہے. بالکل اسی طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، کچھ بھی رکھا جائے، مگر مقصد صرف ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہو. کوئی بھی فضائل ہو، کوشش ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں. اور میرا موضوع آپ کے ذہن نشین ہے کہ رسول اور بطول کے عنوان سے ہی ہم 4 دن کے چوتھا دن ہے انشاءاللہ کہ جس پہ ہم لگاتار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم لوگ لگاتار روشنی ڈال رہے ہیں اور جتنا میرے اندر صلاحیت ہے میں اپنی پوری قوتوں کو سمیٹ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ کچھ نہ کچھ اپنے جوانوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاطمہ کیا ہے. فاطمہ وہ ہے کہ جس کے زبر زیر بھی بدلتے ہیں تو معنی اچھے ہوتے ہیں. فاطمہ محدثہ بھی ہے، فاطمہ طاہرہ بھی ہے، فاطمہ زکیہ بھی ہے. فاطمہ وہ ہیں کہ جن سے فاطمہ راضی ہے ان سے اللہ راضی ہے. فاطمہ وہ ہیں کہ جن سے فاطمہ ناراض ہیں ان سے اللہ ناراض ہے. شارٹ مجلس یہی ہے. کل جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا آج سے صرف وہیں سے آغاز ہوگا اور کوشش کروں گا کہ 10:30 بجے تک مجلس کو ختم نہ کروں، ملتوی کر دوں، کیونکہ کل انشاءاللہ تعالی شب داغی بھی ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ بالکل 9 بجے اگر مجھے بانیان ممبر دے دیں تو 10 بجے تک میں ممبر چھوڑ دوں، کیونکہ کل رات میں میری ٹرین بھی ہے اور مجھے پرسوں دن میں 10 بجے حسین ٹکری رتلام میں مجلس کو خطاب کرنی ہے فاطمہ زہرا کے روضے پر. تو کوشش ہوگی کہ جلدی سے یہاں سے بھی خدمت کروں اور پھر سفر بھی بہت آسانی سے طے کر لوں. مومنین کی سلامتی کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات اور بالکل کوئی تمہید نہیں، صرف آغاز گفتگو ہے. اللہ کا رحمان، اللہ جسے بہت ہی اچھے القابوں سے بلا رہا ہے. کہیں تہا کہہ کے بلایا،
کہیں یاسین کہہ کے بلایا، کہیں مزمل کہہ کے بلایا، کہیں مدثر کہہ کے بلایا، کہیں سراج کہہ کے بلایا، کہیں منیر کہہ کر بلایا، جسے اللہ نے ناز اور نخرے بڑے اٹھائے. مگر اللہ ہے جب بات علی کی آتی ہے تو تیور بھی بدل لیتا ہے. یہ اللہ ہے جب بات علی کی آتی ہے، پوری تاریخ میں پڑھ رہا ہوں اس میں شہدی بھائی، جب اللہ ہے جب بات علی کی آئے تو تیور بدل لیتا ہے. جانتے ہیں کیسے تیور بدلتا ہے؟ کہ بھائی اللہ کہتا ہے میرے نبی اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت پہ کوئی انجام ہی نہ دیا. میرے نبی کانٹوں پہ میرا نبی چلا ہے، اونٹوں کی اوجڑیاں نبی پر پڑی ہیں، اور اگر بات علی کی ہے اور اللہ فوراً غضبناک ہو جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے نبی اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں میرے نبی. وہ رحمان، وہ رحیم، وہ قہار، وہ کریم اللہ جسے اپنے بہت ہی ناز اور نخروں سے آواز دے رہا ہے، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، میرے سراج، سب کچھ اللہ کہہ کے بلا رہا ہے. اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ میرے نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں. 3 دن کی امن بھائی تشریف لائے ہیں، اس لیے تھوڑی سی محنت آپ کے لیے کر رہا ہوں. کچھ نئے چہرے آئے ہیں، صرف آپ لوگ زحمت گوارا کیجیے گا. شرد بھائی تھوڑا سا زحمت گل بھائی کیجیے گا، کیونکہ سرور بھائی تھوڑا سا اس لیے کل کی بات کو ملا رہا ہوں تاکہ آج نئے چہرے بہت سارے آ گئے ہیں تو بس ان تک موضوع پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ نبی ہے جو اللہ بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کراتا. میرے نبی تو نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. میرے نبی تو ادھر تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں نہ چاہوں. میرے نبی تو نے کنکریاں نہیں اٹھائی کہ میں نے کنکریاں اٹھائی ہیں. اللہ ناز اٹھا رہا ہے، نخرے اٹھا رہا ہے. اور جملہ کہوں، اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ سوچوں پہ پہرا رکھتا ہے محمد کے. محمد تو نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. تو پھر ایک جملہ بہت دھیرے سے کہہ کے آگے بڑھوں، آغاز مجلس کروں کہ جب اللہ اپنے محمد سے سب کچھ کہلاتا ہے تو پھر مجھے کہہ لینے دو کہ پھر محمد نے کسی کو مسجد سے نہیں بھگایا. جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یا تو یہ مانو کہ نبی اپنے سے ہر کام کرتا ہے، یا پھر اللہ اپنے نبی سے کرواتا ہے، یا یہ مانو کہ محمد کرتا ہے تو پھر کہو نا محمد نے بھگایا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محمد کسی کو بلائے تو بھی اللہ کی مرضی سے، محمد کسی کو بھگائے تو بھی اللہ کی مرضی سے، محمد کسی کو بٹھائے تب بھی اللہ کی مرضی سے، محمد غدیر کے میدان میں کسی کو اٹھائے تو بھی اللہ کی مرضی سے. اپنے طریقے سے کچھ کرتا ہی نہیں. میرا نبی تو اتنا معصوم ہے کہ کچھ بولتا ہی نہیں جب تک اللہ نہیں کرتا. اور پھر کیا ارشاد ہوا؟ فاطمہ تو حکم نوجوان سے دہرائیں گے. کیا ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ثابت ہو گئی تھی نا دوسری مجلس میں. بالکل آج ثابت نہیں کروں گا، ماں ثابت ہے نا. اگر موضوع سمجھ میں نہ رہا ہو تو بولو اور آسان کرو، صرف نوجوانوں کے لیے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ماں ثابت ہو چکی ہے، فاطمہ ثابت ہو چکی، رسول ثابت ہو چکے. آج فاطمہ بتانا ہے کہ فاطمہ ہے کون، فاطمہ کہتے کسے ہیں، فاطمہ ہے کیا. جو یہ کہہ دے وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فاطمہ ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. جن سے یہ ناراض ہو جائیں ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے یہ خوش ہو جائیں اللہ خوش ہوتا ہے. تو ایک جملہ کہوں نصیحت کے طور پر، جب مجلس فاطمی میں آیا کریے تو جب باہر نکلا کیجئے تو شکرانہ کیا کیجئے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ زہرا بھی راضی تھی، اس لیے ہم مجلس میں آئے. ٹھیک ہے، بالکل یہی رہیے گا تاکہ مجلس بالکل آغاز ہے مجلس کا، اور آپ کی ضرورت ہے مجھے آغاز میں. اگر آغاز میں ہی ٹیڑھا ہو گیا دیوار تو آخری تک محل بھی اچھا نہیں بن پائے گا. یہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو بالکل آمادہ رہیے گا. میرے نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ بولوں. میرے نبی تو کچھ کلام ہی نہیں کرتا، اور تجھ پر تو میرے احسان ہے اور مجھ پر تیرے احسان ہے. ہم نے کہا معبود تیرا تو احسان سمجھ میں آتا ہے، یہ نبی کا احسان تیرے اوپر کیا ہے؟ کہ تو جانتا ہی نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بکھر جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. سرور بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزے ریزے ہو جاتے, بکھر جاتے, ٹکڑے ہو جاتے. لاؤ 200 قرآن ہدیہ کرا کے اور مجھ سے پیسہ لے لینا اور لے جا کے رکھ دو مسجد پہ چھت پر, اور پھر نیچے دیکھو کہ کون ہلتا ہے, بام دیوار ہلے کہ نہیں. آپ کہیں گے مولانا دیوار تو دور, ہم بھی نہ ہلے. تو بھیا اب یہاں سے کہنے دو کہ پھر اللہ کون سے قرآن کی بات کر رہا ہے. مجھے ابتدائی دور میں آپ کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم پہاڑ کو نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, پہاڑ بکھر جاتے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قرآن کو یہ اور بتا رہا ہے. اب جب میں نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا قرآن ایک نہیں ہے, قرآن دو ہے. ایک چپ قرآن, ایک بولتا ہوا قرآن, ایک خاموش قرآن, ایک بولتا ہوا قرآن. ایک قرآن صامت ہے, ایک قرآن ناطق ہے. اللہ کرے آپ پہنچ جائے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک قرآن صامت ہے, ایک قرآن ناطق ہے. اللہ نے کہا قرآن دونوں ہیں, ایک چپ قرآن ہے, ایک بولتا ہوا قرآن ہے. لیکن معجزہ ہم دونوں میں برابر رکھیں گے. کا مطلب کا وزن ایک ہوگا, شفا ایک طریقے سے ملے گی. مومنین ایک جھنڈ آ رہا ہے, ان کی سلامتی کے لیے نعرہ صلوات پڑھیے گا. بالکل آواز مجلس ہے, آج وقت بالکل زیادہ نہیں لینا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کل کے لیے معذرت خواہ ہوں, ٹھیک ہے. قرآن دو ہیں, ایک چپ قرآن, ایک بولتا ہوا قرآن. اللہ نے کہا یاد رکھنا اگر چپ قرآن سے شفا ملے گی تو شفا بولتے ہوئے قرآن سے بھی ملے گی. اگر سورہ رحمان سے شفا ہے تو پھر بولتے ہوئے قرآن سے بھی شفا ہے. ہم نے کہا بولتے ہوا قرآن کیسے دیتا ہے, ابھی بتاتا ہوں. یہ دیکھ, تقدیر کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب ہے. تقدیر کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب ہے, تدبیر کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا حسین ہے. ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے, تقدیر بدلی جاتی ہے, تدبیر نہیں بدلی جاتی. حسین نے راہب کی تقدیر نہیں بدلی, حسین نے راہب کی تدبیر بدلی ہے. اگر یہ شفا دے گا تو وہ بھی شفا دے گا, دونوں برابر ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معجزہ دونوں میں رکھا, معبود معجزہ دونوں میں رکھا ہے. جملہ سن لیے گا اور ذرا سا مجھے داد دیجیے گا تاکہ بات اگلا جملہ کہنے کی ہمت کر سکوں. ہم نے معجزہ دونوں میں رکھا ہے, چپ قرآن میں بھی معجزہ, بولتے ہوئے قرآن میں بھی معجزہ. بس فرق یہ ہے کہ خاموش قرآن کی تحریر میں قیامت رکھی, بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں قیامت رکھی. معجزہ دونوں میں ہے, چپ قرآن کی تحریر میں قیامت اور بولتے ہوئے قرآن کی تقریر میں قیامت. دلیل دو, علی کی بیٹی بول رہی ہے. اندھے صحابی نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیوں؟ کہا علی بول رہے ہیں. اللہ اکبر, کون بول رہا ہے؟ علی بول رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں سلام ہو علی کی بیٹی پر کہ علی کی بیٹی نے بندھے ہوئے ہاتھ سے اسلام کی ایسی تبلیغ کی, ایسی تبلیغ کی, ایسی تبلیغ کی, ایسی تبلیغ کی کہ ماننے والے تو قاعدے سے آ گئے, نہ ماننے والے القاعدہ بن گئے. ارے میں نے کیا جملہ کہا ہے آپ کو بھیا, یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے, خدا کی قسم. لاکھوں کروڑوں سلام ہو زینب عالیہ مقام پر, یہ بندھے ہوئے ہاتھ سے اسلام کی ایسی تبلیغ کی ہے کہ ماننے والے تو قاعدے پہ آ گئے اور نہ ماننے والے القاعدہ بن گئے. یہ علی کی بیٹی کا سب سے بڑا کمال ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن دو ہے, اللہ نے معجزہ دونوں میں رکھا ہے. پھر اللہ نے کہا یاد رکھنا ہر قاری قرآن جنتی نہیں ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بھی جنتی ہے, ہر بات کہہ نہیں سکتا ہوں, ہم تو سمجھ رہے تھے. بھیا ہم تو سمجھ رہے تھے جھوٹ لگا لگا کے پنا پلٹنے والے, ہل ہل کے قرآن پڑھنے والے, آسان کر رہا ہوں, جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والے,
आंखों में सुरमा लगा लगा के कुरान पढ़ने वाले, बुग़्ज़ अली का चश्मा लगा लगा के कुरान पढ़ने वाले, हाय 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 हाय, बुग़्ज़ अली का चश्मा लगा लगा के कुरान पढ़ने वाले, झूम झूम के कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह ने बता दिया ये जन्नती नहीं है। का फिर का हर कारी कुरान जन्नती भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कुरान और फिर जन्नती नहीं है। कहा का क्यों? का कुरान का हक है, अगर हक ना दोगे तो जहन्नम में डाल देंगे। महबूब कुरान का क्या हक है? का कुरान का हक ये है कि ठहर ठहर के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो। और कुरान में जहां जन्नत का जिक्र है वहां फौरन कुरान बंद करो, सर पे रख के जन्नत की दुआ मांगो। कुरान के आदाब देखिए क्या है। अब ऐसा नहीं है कि रमजान में कंपटीशन में पढ़ा जाए। अच्छा, बड़े वाले लोग 10 पे हैं तो हम 9 पे कैसे? हम तो आज 11 पढ़ेंगे। अब अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल मुत्तक़ीन, अब उसको भी पता नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं, उसका बस चले तो शताब्दी चलाए दोनों हाथ से। देखते तो हम रमजान में कंपटीशन करने लगे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने रमजान दिया, वरना हम 12 महीने भी कुरान ना उठाते। ठीक है, तो कुरान समझिएगा कि कुरान किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन आसान कर रहा हूं अपने भाइयों के लिए कि हर कारी कुरान जन्नती भी नहीं है। अल्लाह अकबर, हर कारी कुरान जन्नती भी नहीं है। मतलब का कुरान का हक है। कुरान का हक यह है कि जहां जन्नत का जिक्र आए वहां फौरन कुरान बन के सर पे रखो और जन्नत की दुआ मांगो। जहां जहन्नम का जिक्र हो वहां कुरान बंद करो, गाल पे रख के सजदे में जाओ और जहन्नम से बचने की दुआ मांगो। अल्लाह कुरान के आदाब बता रहा है और कह रहा है याद रखना, इसके बावजूद भी वो भी जहन्नमी है कि जिसके दिल में कुरान नहीं है, जिसके हल्क में कुरान है। अल्लाह जाने, अब तो किसी खामोशी किसी तूफान में बदलनी चाहिए। जिसके दिल में कुरान नहीं है, जिसके हल्क में कुरान है। हम समझते थे कि हल्क में कुरान भी है, कहां हल्क में कुरान अटका है जिनके। अल्लाह अकबर, ये बात पहुंचाने जाऊं, बड़ी मेहनत से ये जुमला पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने। इतने दिन से ये जुमला बचा रहा था, कल इतनी दाद दी है कि आज पढ़ने में मजबूर हूं। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि कुरान कह रहा है कि भाई वो भी जहन्नमी है जिनके हल्क में कुरान है। फिर जन्नती कौन है? का वो है जिनके दिल में कुरान है। भैया पूछा किससे जाए? मुझसे, ख्वाजा अजमेरी से। पूछा किससे जाएगा? का इनसे ना पूछो, इमाम से पूछो। हम इमाम के पास पहुंचे, मौला कुरान है। कुरान कह रहा है कि हम दिल वाले जन्नती हैं, जिनके हल्क में कुरान है वो जहन्नमी है। क्या कुरान से पूछ। अब जैसे ही हमने कुरान से पूछा, कुरान तू बता दे कि किसके दिल में है, किसके हल्क में है। कुरान ने बढ़कर सहारा दिया, यूं तो मैं पूरी पूरी कसीदा हूं अली की। अल्लाह करे मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं, मैं तो यूं पूरी पूरी कसीदा हूं अली की। रहमान कसीदा अली का। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, सूरह बकरा कसीदा अली का, सूरह तौबा कसीदा अली का, सूरह हलका कसीदा अली का, इन्नमा कसीदा अली का, वलीकुमुल्लाह कसीदा अली का। इधर समाउन फतरत वैजल कवाकिबुन तफरत वैजल बिहार फुज्जरत वैजल खुबूर वसरत कलिमत नफ्सुम मक़द्दमत वक़रत या अय्युहल इंसानु मा बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़ फसव्वाका फअदलक। ये सूरत माशा तरक व कल्लमत तुकस्सिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व किरामन कातिबीन व शम्स व सुहाहा। पूरा कसीदा अली का है। मगर यूं तो मैं कसीदा अली के लिए हूं, मगर मैं दुश्मन के लिए वायरस हूं। हाय हाय हाय, मैं दुश्मन के लिए वायरस हूं, अपनों के लिए शफा हो, दुश्मन के लिए शफा नहीं हो। भैया कुरान कह रहा है कि मैं हल्क में उतर जाऊं तो जहन्नमी बना देती हो, मैं दिल में उतर जाऊं तो जन्नती बना देती हो। हमने कुरान से पूछा, कुरान तू बता दे कि किसके हल्क में कुरान है, किसके दिल में कुरान है। कुरान ने कहा नबी से पूछा जाए। मैंने पूछा नबी अल्लाह मामला क्या है? का याद रखना, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बस कुरान ने बढ़कर सहारा दिया। अली को समझा तो मुझे समझ जाएगा, मुझे समझा तो अली को समझ जाएगा। हमने कहा क्यों? का मैं भी दीवाना हूँ अली का। बस मैं नफ्सों के जरिए से हल्क में उठल के अली देखता हूँ। जिसके दिल में अली होता है उधर जाता हूँ, अली नहीं होती हल्क में उधर जाता हूँ। इसने चीना कर ले
सलामत रखें हमारे बच्चों को। ये ताजियाना है उनके लिए जो अभी भी गूंगे बैठे हैं। हाँ, ये ताजियाना है खुदा के कसम जो अभी भी गूंगे बैठे हैं नावे अली पर। पुरिया खाने वालों से तो मैं ऐसे भी शिकवा नहीं करता। पुरिया खा के बैठे हो तो पूरा लुत्फ लो, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे जो लोग खा के बैठे हैं कारखाने में आग लगा दे। जो चीज जिक्र हुसैन में आ जाए वो हराम ही हराम है। इसीलिए शायद मर्दों पे सोना हराम है, क्योंकि इंसान यहाँ पे सोने लगता है। मैंने तो लफ्जों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो मैं कुरान कसीदा है जिसके दिल में, अब समझ में आया कि जिनके दिल में कुरान है वो जन्नती है, जिनके हलक में कुरान है वो जहन्नमी है। कुरान भी कसीदा लिखा है। कब मैं भी तो चालाक हूं, मैं हल्क से दिल में झांक के देख लेता हूं, जिसके दिल में अली होता है उतर जाता हूं, और जिसके दिल में अली नहीं होता अटक जाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ अली के बगैर सब कुछ अधूरा है। अली के बगैर कुछ नहीं है। विलायत अली के घर में, इमामत अली के घर में, नबूवत अली के घर में, इस्मत अली के घर में, फातिमा जैसी बतूल अली के घर में, मोहम्मद जैसा रसूल अली के घर में। अल्लाह अकबर। लाखों करोड़ों सलाम हो। जब हदीसे के साथ पढ़ा करो तो फातिमा को सलाम किया करो, क्योंकि तुम्हारे पास हदीसे के साथ है। के साथ चादर वाली बात, मैं कमली वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चादर वाली बात। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो कि आपके पास चादर वाली बातें हैं, वरना लोगों के पास तो मकाने वाली भी बात नहीं है और ना मैदान वाली बात है। मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूं, मैं आपके समझने का जिम्मेदार नहीं हूं। फरमा रहे हैं आप जैसे भाई कुछ अर्ज करने जा रहा हूं। ये फातिमा है, सब कुछ इनके पास है, और अल्लाह ने इनसे रिस्क दूर रखा है। रिस्क इनसे दूर रखा है। अगर ये मजलिस में है तो नजीस नहीं आएगा। क्या बात है भाई, अभी भी चेहरा उतरेगा। मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूं। अगर ये है ना तो कोई नजीस नहीं आएगा, चाहे जितना परफ्यूम लगा के आया हो, मगर बाहर ही खड़ा रहेगा। हाँ 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 हाँ। अगर ये जहां है ना, या तो ये मानो कि ज़हरा है, या ये मानो कि ज़हरा नहीं है। भले अगर ज़हरा है तो नजीस नहीं आएगा। इंसान की शख्सियत कैसे मोतबर होती है आप जानते हैं? अच्छा होने से मोतबर नहीं होती। शख्सियत कैसे मोतबर होती है जानते हैं आप? शख्सियत मोतबर उस वक्त होती है जब इंसान में बुराई ना हो। अच्छाई होने से मोतबर नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैंने मजलिस पढ़ी, लोगों में हंगामा हो गया, वो क्या लिया बात। छपरवी ने मजलिस पढ़ी, कमाल की मजलिस पढ़ी, लोगों में चर्चा होने लगा। एक साहब ने कहा कि चलो हम भी कुछ अल्फाजों की मोती पिरोए हुए मौलाना के पास चले, और जैसे ही आए उन्होंने कहा मौलाना बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी आपने। हमने कहा शुक्रिया। कहने लगे मौलाना आपसे पहले बगल में एक और मौलाना मगरिब की नमाज से पहले पढ़ कर गए, माहिर साहब मजलिस पढ़कर गए। क्या मजलिस पढ़ी उन्होंने मगरिब में, मौलाना दिल खुश है। अरे हटिए, कहाँ बात कर रहे हैं, जगह पड़ गया था पाला। एक जगह पाला पड़ गया था, नाम सुनते ही वो मेरा अली अब्बास छपरवी पढ़ेंगे, पहली मजलिस भूल गए। देख रहे हैं आप? जैसे ही मैंने ये जुमला कहा वो आदमी समझ गया। खतीब अच्छे हैं, आदमी अच्छे नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ आपके सामने। उसने अभी तक मुझे आदमी अच्छा समझ रहा था, और जैसे ही मैंने कहा कहाँ बात कर रहे हैं मौलाना माहिर साहब की, पाला पड़ गया था। एक दिन 2 मजलिसें थी, मेरा नाम सुनते ही वो मैटर भूल गए कि पढ़ूं क्या, मेरे बाद अली अब्बास छपरवी को पढ़ना है। तो वो समझ गया कि आदमी अच्छा है मगर जलनखोर है। मैं कुछ कहने जा रहा हूं भैया, आदमी अच्छा है मगर जलने की सलाहियत रखता है। पढ़ता अच्छी है मजलिस मगर जलता है, आदमी खराब है। आया था अभी तक अच्छा समझकर, चला गया बुरा समझकर। आप समझे जुबान एक चाबी है, जिस्म एक दुकान है। जब इंसान चाबी से दुकान खोलता है तो पता चलता है दुकान कोयले की है या सोने की है। मौला ने फरमाया बोलना कमाल नहीं है,
कौन सी बात कहां बोलना है ये बोलना कमाल है। बहरहाल मौजू मेरा ये नहीं है, मौजू मेरा ज़हरा है, सुनिएगा, ठीक है भाई। आदमी बड़ा अच्छा था, चला गया भाई, बाहर जाके कहने लगा हम तो मौलाना को बड़ा अच्छा समझते थे, खतीब भी आदमी भी, मगर मौलाना खतीब अच्छे हैं, आदमी अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बुराई शख्सियत को मोतबर नहीं बनाती। अगर बुराई हो और कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ऐब ना हो, ये अलग बात है, किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। कोई इंसान ऐसा भी नहीं है कि जिसके अंदर बुराई ना हो, ठीक है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। बहरहाल तो फरमाइएगा, क्योंकि अखबारों का जमाना चल रहा है, आपके मोहल्ले में भी होंगे। क्या कहना भाई, क्या कहना? हाँ ठीक है, तो छप जाता है किसी का छुप जाता है। उन्होंने कहा मौलाना बहुत बड़ी दलील लेने जा रहा हूं आपके सामने, कलेजा लगाऊंगा आज आपके सामने। भैया मोतबर कब होती है शख्सियत? जब कोई बुराई ना हो। अब आप पूछेंगे अल्लाह ने आयतों पे आयत क्यों भेजी? आयतों पे आयत क्यों भेजी? आयतों में आयत इन्नमा युरिदुल्लाह मोतबर है सबसे ज्यादा शनाख्त किस आयत को मिली? इन्नमा युरिदुल्लाह, इन्नमा युरिदुल्लाह, इन्नमा युरिदुल्लाह। अब समझदारों के लिए बहुत मजबूत मैंने दलील रखी है आपके सामने। अब लोग कहते साहब आयत इतनी क्यों आई, इन्नमा एक तरफ क्यों आई? हमने कहा याद रखना, सारी आयतों ने आकर अहले बैत की खूबी बताई, इन्नमा ने आकर अहले बैत से दूरी बताई। सारी आयतों ने आकर ये बताया कि अहले बैत में सारे फजाइल हैं, इन्नमा ने आकर बताया कि अहले बैत में कोई बुराई नहीं है, रिस अहले बैत से दूर है, नजीस अहले बैत से दूर है। जब कुछ लोग खैबर में एक जंग में उहद के भागने के बाद लोग आए तो आवाज किबरिया या कुरान ने कहा मेरे नबी खबरदार इन रिस्क से कलाम ना करना, ये नजीस है। इसका मतलब ये हुआ मासूम नजीस से मुंह फेर लेता है। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं आपके सामने, मासूम और हल्की करूं मत, मासूम या मासूमा में जा रहा हूं। नौजवानों जो समझ रहा है अल्लाह को मुझसे जुड़ेगा, मासूम या मासूमा रिज से मुंह फेर लेते हैं। अब जिससे ज़हरा मुंह फेर ले, अब चाहे कोई भी उसे इज्जत दिलाए, मगर मासूमा की निगाह में वो गंदगी है, और जो मासूमा की निगाह में गंदगी है उसे कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि मासूम हमेशा रिज से मुंह फेरता है। ये जिनसे मुंह फेर ले वो नजीस है। बात मुकम्मल हो गई, अब आगे बढ़ रहा हूं। ये जिससे मुंह फेर ले वो रिस्क है, और ये उसी जगह पर आते हैं जहां पाक हो। ये नूरानी बता रही है कि ज़हरा की आमद है, और जहां ज़हरा होगी वहां रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ज़हरा वो सरदार है। एक जुमला कहूंगा, अगर यहीं पर है तो दिल से दिल मिलाइएगा। ज़हरा वो खातून है, ज़हरा वो सैयदा है, ज़हरा वो ज़किया है कि जब दीन को सुकून हो, और आसान करूंगा, जब दीन को साये की जरूरत हो तो मोहम्मद के कदमों में आता है, और जब मोहम्मद को साये की जरूरत हो तो ज़हरा की चादर में आता है। अब जब हम पहचानवाते हैं ज़हरा को तो कहते हैं ये फातिमा। भाई तवज्जो फरमा देते हैं, ये कौन है? ये हसनैन की माँ है, ये अली की ज़ौजा है, ये मोहम्मद की बेटी है। मगर जब अल्लाह पहचानवाता है तो कहता है ये फातिमा है, ये फातिमा के बच्चे हैं, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा के बाबा है। भाई तवज्जो फरमा रहे, ये पंजतन है, ये पंजतन है। फातिमा को पहचानो। अंधों के बीच में कनवा राजा होना अच्छी बात नहीं है। भाई तवज्जो कहने जा रहा हो, भैया तवज्जो फरमाइएगा, कोई खतीब ना हो और अली पाक शबरबी खिताबत करे तो अंधों के बीच में कनवा राजा, जहां सारे पढ़े लिखे बैठे हो और मैं खिताबत करूं। भैया राजों के बीच में राजा है, मगर फातिमा मलाइकों के बीच में नहीं है, फातिमा सरदारों के बीच में सरदारी है। फातिमा सरदारों के बीच में सरदार। अब जुमला नजर करूं, जरा हाथ उठाने की सलाहियत है तो जरा सा जुमला नजर करने जा रहा हूं। फातिमा को सरदारी कहां मिल रही है? अल्लाह सरदारों के बीच में फातिमा को खिताब कर रहा है। आओ मोहम्मद चादर के अंदर, नबियों
चादर के अंदर वलियों का सरदार, हसनैन चादर के अंदर जवाना ने जन्नत के सरदार, फातिमा चादर के अंदर औरतों की सरदार, अल्लाह ने सरदारों के बीच में सरदारी ज़हरा को दी। अल्लाह जाने आप कहाँ हैं, मैं तो बहुत दूर लेके जाना चाहता हूँ तकलीफ। अल्लाह ने सरदारों के बीच में सरदारी ज़हरा पैदा करवाई। ये नहीं कहा ये मोहम्मद है, ये नहीं कहा ये अली है, ये नहीं कहा ये हसन है। अल्लाह करे आखिरी जुमला ये पहुंचना चाहिए। ये नहीं कहा ये हसन है, ये नहीं कहा ये हुसैन है, कहा ये फातिमा है, ये फातिमा के बच्चे हैं, ये फातिमा के शौहर है, ये फातिमा का बाबा है। मोहम्मद से पहचान कल ये बात छपे भी तुझे मालूम नहीं है। तारीख का मुंह छोड़ राइटर कहीं मोहम्मद की चार बेटी न लिखे। अल्लाह को मालूम था ये तारीख का मुंह चोर राइटर। अरे अबू जहल की जाहिल औलाद, क्या कहने अल्लाह वाकिफ था, फातिमा से पहचानवाया। अगर और बेटी होती तो अल्लाह उनका भी नाम लेता ना, ये है। अल्लाह आदिल है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक बेटी को देता दूसरी बेटी से ना पहचानवाता। का ये फातिमा है, ये उनके बच्चे हैं। और याद रखना हमने फातिमा को इतनी सलाहियत दी है कि फजाइल भी इन्हीं से पढ़े जाएंगे। इनका दोस्त रजी अल्लाह है, इनका दुश्मन लानतुल्लाह है। हमने उसी दिन पहचानवाया कि जब फातिमा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। आला हजरत मौला के पास आए, मौला आप फातिमा को सलाम किया जाता है, वो जवाब नहीं देती। मौला तशरीफ लाए, फरमाया ज़हरा वो सलाम करते आप जवाब क्यों नहीं देती? कायनात की बीवी ने अजब फसाहत और बलागत का जुमला किया। फरमाया अली आपको तो पता है ना शरीयत मोहम्मदी में काफिरों के सलाम का जवाब नहीं है। और मैंने क्या अर्ज किया है आपके सामने, आपको पता है ना शरीयत मोहम्मदी में काफिरों के सलाम का जवाब नहीं है। अब पहचानना हो कौन कौन रज़ी अल्लाह है तो फातिमा का सलाम देखो, फातिमा का कलाम देखो, क्योंकि लानतें भी इन्हीं के जरिए से आती हैं। हाय 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 हाय, लानतें भी इनके जरिए से आती हैं। आप कहेंगे लानत कैसे आई? तो आओ मुबाहिला देखो, आओ ना मुबाहिला देखो कि लानत भी इन्हीं की वजह से आई है। फातिमा घर से निकली, लानत अपनी जगह से चली। अब नाम लेके लानत मत किया करो, लानत पानी है, हकदार को ढूंढ लेगी। अरे मैं क्या कह रहा हूं, लानत क्या है? ज़हरा के कातिलों पे चेहरा उतर रहा है शादी भाई कुछ लोगों का। ज़हरा के कातिलों पे ठीक है ना, नाम लेके बिल्कुल मत करो। अब तो गूगल बताएगा, कई लोगों ने कल सर्च किया मिला ना, अब गूगल बताएगा। लिखो उनके फातिमा ज़हरा, फातिमा का कातिल कौन है वो लिख के बता देगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, गूगल बताएगा। भाई सर्च किया था कल, आप एक बार जवाब देते कल मिला? शुक्रिया आपका। ये बाद वालों को भी दिखा दीजिएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तजुर्बा कह रहा है। अब पहचाना, लोग कहते हैं यार फातिमी करने की क्या जरूरत? अरे यही जरूरत है कि अब गूगल बता रहा है कि ज़हरा का कातिल कौन है। देखा आपने जिस तरीके से हमने 10 मुहर्रम तक के 2 महीना 8 दिन सीने पे हाथ मार करके हुसैन के कातिल को बेनकाब किया, अय्याम फातिमिया करके ज़हरा के कातिल को बेनकाब कर दिया।
मारते हैं, किसी के गर्दन पे चाकू भी नहीं रखते। और दिखाऊं इसका नतीजा, हाथ यहाँ पड़ता है, गाल दुश्मन का लाल होता है। हाथ हम मार रहे हैं, असर दूसरी जगह हो रहा है। आग पे हम चल रहे हैं, जल कोई और रहा है। तमा हम लगा रहे हैं, खून किसी और का कम हो रहा है। जंजीर हम लगा रहे हैं, मर मनहूस कोई और रहा है। हम किसी को थोड़ी मारते हैं। हाथ हमारा, सीना हमारा, गाल हमारे, सर हमारे, पीठ हमारी, जंजीर हमारी, चाकू हमारे, मिंबर हमारा, तबर्रुक हमारा। अरे हमने तुम्हारे भी बच्चे देखे जो हुसैन के तबर्रुक पे पड़ गए। सब कुछ हमारा, खल दुश्मन को रहा है। इनसे है सब कुछ। कुछ ना कर पाओ तो एक एक मजलिस तो शहादत के दिन जरूर अपने घर में किया करो, ताकि पड़ोसी मिले ना तो पूछे आज कौन सी मजलिस थी। तो आप बताओ कि आज मोहम्मद मुस्तफा की इकलौती बेटी कोई नहीं है ना, तो आपस में नौहा कर लो ना। जरूरत थोड़ी अंजुमन बुला लो। चाय पिलाएंगे तो ही अय्याम फातिमी होगी, बिस्किट खिलाएंगे तो ही होगी, खाना खिलाएंगे तो ही होगी, शबेदारी करेंगे तो ही अय्याम फातिमी होगी। 5 आदमी है, नौहा पढ़ लो जोर जोर से, मगर पढ़ना ताकि पड़ोस के घर में आवाज जाए। फिर वो तुमसे पूछे कि क्यों आज मजलिस कर रहे थे, इतने दिन से कहां थे? तो बताना आज मोहम्मद की इकलौती बेटी की शहादत की तारीख है। इससे अच्छी तबलीग मैं नहीं कर सकता था आज। ठीक है ना, जरूरत थोड़ी है, क्योंकि शहादत आ रही है, करो मजलिस घर में। औरतों को भी कहो कि तुम भी मातम करो, अपने घर में बच्चों को, फैमिली को लेकर नमाज पढ़ो। जरूरी थोड़ी के लिए बात शबरवी पढ़े या कोई और खतीब आके पढ़े। तुम भी हुसैन के जाकिर हो, आप भी खतीब हो हुसैन के। कौन कहता है आप नहीं हो? जो बोल दे हुसैन के लिए वो हुसैन का खतीब है। शर्त थोड़ी है हुसैन के खतीब के लिए कि मोट पेट ज्यादा हो, गर्दन मोटी हो, सर पे अमामा हो या टोपी हो या पतला दुबला हो। जरूरी नहीं है। जो बोल दे, जहां बोल दे, जिस तरीके से बोल दे वो खतीब है। जहां बोल दे, जिस तरीके से बोल दे वो खतीबा है। ठीक है, तो अय्याम फातिमी के दिन चल रहे हैं, घरों में मजलिस करिए। ये टाइम तो हर जरूरी है आप पर। इससे अच्छी तबलीग आप नहीं कर सकते। अपने घर में मजलिस से फातिमा ज़हरा कहिए, एक आदमी बैठकर 5 मिनट का मसाइल पढ़ दे, 4 आदमी खड़े होकर वहां पढ़ ले, हो गई तबलीग। पहुंच गया पैगाम कि आज मोहम्मद की इकलौती बेटी की शहादत है। अगर और भी होती तो शहादत नहीं, कम से कम हलाकत भी तो होती, कुछ तो होता नहीं सर। तो सब कुछ किससे है? फातिमा से है। लानतें किससे हैं? थोड़ा सा जुड़िएगा। सलवात किससे है? फातिमा आ रही है मुबाहले में। क्यों? सदाकत की मुहर लिए हुए। अब देखो इधर, फातिमा जैसे ही घर से निकली, उधर से लानत चली। इस पर बातिल पे लानत जानी है ना। आयत आई है, अपनाना व अपनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसिना, थोड़ा सा बोलिएगा, अनफुसिना अनफुसिकुम। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। जैसे ही आयत आई ना बाबा, औरतें तो यूं भी नहीं निकल रही थी, और मर्द औरतों का जेवर पहने हुए थे। मर्द औरतों का जेवर पहने थे कि हमको मैदान में जाना ही नहीं है। हम मैदान जानते नहीं, हम तो मकान जानते हैं। मगर जैसे ही रसूल ने कहा ना कि आज न तलवार चलेगी, न तीर होगा, न घोड़े होंगे, फिर का पैदल चलना है, बद्दुआ होगी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। नबी ने कहा तुम नहीं जाओगे। नबी अल्लाह, ये कौन सी बात हुई? जिस जगह पे जाना नहीं चाहते थे हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते थे, और जिस जगह पे जाना चाहते हैं आप ले नहीं जा रहे हैं। तो नबी कहते चलो, मगर एक शर्त है। कौन? का वापस वही पलटेगा जिसने बचपने से लेकर जवानी तक झूठ ना बोला हो। हाय हाय हाय, नबी की बात कर रहा हूं मैं। चलो चलो, आओ बिस्मिल्लाह, चलो चलो, मगर आज तलवारों की नहीं, आज निस्तो नाबूद होना है। तो हम तो बच भी जाते थे और टाल देते थे, घोड़ा लेके भागा। मगर अब तो भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि घोड़ा भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, बद्दुआ होनी है, मर जाएंगे। भाई तो जो फरमा रहे हैं, नहीं रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाह।
मगर नबी अल्लाह एक आयत आई है, अबनाना व अबनाकुम, आप अपने बेटे लाए, आपके पास तो है नहीं। नबी ने कहा अच्छा मौका है उन्हें बताने का जो दुआ ताबीज से बेटे पैदा कराते हैं। पहुंचे जा रहे हैं, ताबीज लिख दो बेटा हो जाए। नबी ने बताया हम बताएंगे बेटे कैसे मिलेंगे। का फिर का सुबह नमोदार हुई, कायनात के मोहम्मद ने नमाज फजर पढ़ी, दरवाजे को खोला, अली के दरवाजे पे पहुंचे। अब आप अली के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? का मैं वक्त मोहम्मद। का क्यों आए हैं? का अली तुम मुश्किल कुशा हो, मैं मुश्किल में हूँ। अली आयत आई है अबनाना व अबनाकुम, तुम मुझे बेटे दो। कायनात बताती है एक हाथ से हसन को दिया, एक हाथ से हुसैन को दिया। हसन और हुसैन को लेके बाहर निकले तो क्या देखा? औरतें अपने अपने बच्चों को सजा सजा के, नहला नहला के, आए 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 अरे धुला धुला के, आंखों में काजल लगा लगा के, सुरमा लगा लगा के खड़ी थी। कुछ तो अपने कांधे पे लेके खड़े थे, याद नहीं आया वो जुमला? कुछ पंजों पे खड़े थे, कुछ तो यहाँ पंजों पे भी खड़े थे, बेटे भी कांधे पर थे कि नबी मेरे बेटों को देख ले, शायद लेके चले जाएं, शायद लेके चले जाएं, क्योंकि नबी के पास बेटे नहीं है। अब लुत्फ उठाइएगा, एक जुमला कहूँ आपके सामने, बेटे लेके चले जाए। नबी ने कहा क्यों लाए हो? का आयत आई है अबनाना व अबनाकुम, अपने बेटों को लाओ, आपके पास बेटे नहीं है, बेटे ले जाना है। नबी ने इधर से हसन उठाया, इधर से हुसैन उठाया, उठाने के बाद का ये हमारे अबनाना है और तुम अबनाना, ये हमारे अबनाना है और तुम नाना, क्योंकि अबनाना की जरूरत थी, बेटों की जरूरत थी। ये हमारे अबनाना है और तुम अब नाना, जाओ। अच्छा ठीक है, लेके चले। आखिरी जुमला है, मैं पूरे कलेजे की ताकत लगा के पढ़ूंगा। लिल्ला मुझे समात पे भरोसा है, इसलिए ये जुमला पढ़ने जा रहा हूं और उसके बाद रब्ते मसायब है। तवज्जो फरमाइएगा, मैं अपने पूरे कलेजे की ताकत को यल्चा करके ये जुमला पढ़ूंगा और अपनी समातों को सातवें आसमान पे ले जाने के लिए बेदार रहिएगा। ज़हरा पढ़ी, तरकीब देखिए, इधर देखिएगा तरकीब। आगे मोहम्मद, बीच में फातिमा, पीछे है अली। अरे चेहरे का पर्दा छोड़ो, यहाँ पांव के कदमों का पर्दा हो रहा है। अरे मनहूसों, चेहरे का पर्दा छोड़ो, यहाँ पांव के कदमे का पर्दा हो रहा है। आगे है मोहम्मद, बीच में है ज़हरा, पीछे है अली। अब सुनो फातिमा के कदमों की अजमत। फातिमा उस बतूल को कहते हैं जो आगे कदम रखे तो कम से कम निशानी मोहम्मद की हो, पीछे कदम रखे तो कम से कम निशानी अली की हो। बतूल का कदम मोहम्मद पे पड़ा, मोहम्मद का कदम जैसे ही बतूल का हटा, बतूल के कदम पे कदम अली का पड़ा। हाय हाय हाय, यहाँ चेहरे की हिफाजत नहीं, कदमों की हिफाजत हो रही है। आगे आगे बतूल, आगे रसूल, फिर बतूल, फिर अली। अब जुमला पलटू, खिताबत करूं? इजाजत है? खिताबत में करूं? आगे नबूवत, बीच में किस्मत, किस्मत के पीछे है विलायत। नबूवत भी बता रही है कि पर्दा जरूरी है, विलायत भी बता रही है पर्दा जरूरी है। अब जुमला नजर करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। बबलू भाई जल्दी से जगह लीजिएगा ताकि ये जुमला कह दूं आपके सामने। भैया पर्दा जरूरी है। मुबाहिले के मैदान में ज़हरा ने कदमों का पर्दा किया। हाय हाय हाय, जरा जल्दी से सुनिएगा। शाम के बाजार में अजब जुमला कहने जा रहा हूँ, लहजे की तकरीर अली का दिया। एक पर्दा ज़हरा का बना, एक पर्दा सामने ज़हरा का बना। भाई तवज्जो रखिएगा, आगे कदम रखा जा रहा है नबूवत पर, पीछे कदम रख रही है विलायत। जैसे ही ज़हरा चली बातिल के मुकाबले में, उधर से लानत चली। क्या कहने ज़हरा के कदम, मैं नहीं जानता कौन कितनी देर बोलेगा, जरा तवज्जो रखिएगा। इधर से ज़हरा चली, इधर से लानत चली। जैसे ही ज़हरा मोबाइल के मैदान में पहुंची, अम्मार भाई जरा तवज्जो फरमाइएगा। जैसे ही ज़हरा मैदान में आई, नजरान ने कहा हम तो मुकाबला न करेंगे, हम वो चेहरे देख रहे हैं जो सिर्फ
चली ना, गई ना, आई ना लानत। ज़हरा वापस पलटी, क्योंकि नजरान ने तो दामन बचा लिया, हम तो वो चेहरे देख रहे हैं जो इशारा कर दे तो पहाड़ टुकड़े हो जाए। लानत तो चली थी मगर बरसी नहीं। मासूम या मासूमा अमानत पलटाए बगैर वापस नहीं आते। याली मैं जा रहा हूं, ये अमानत है, कल वापस देकर आना। हाय 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 हाय, याली ये अमानत है, वापस पलटा के आना। मासूमा के पास भी एक अमानत थी। अब लोग समझ रहे हैं ज़हरा हक लेने गई थी। अरे हक लेने नहीं गई थी, मुबाहिले की लानत को हकदार तक पहुंचाने गई थी। ज़हरा ने पहुंचा दिया लानत। क्योंकि जो जो ज़हरा के मुकाबले में आ जाए, जो जो ज़हरा के मुकाबले में आ जाए, वो लानती है ना। और ज़हरा की कफो है अली, और जो अली के मुकाबले में आ जाए। भाई मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूँ, आप खामखा औरत समझ रहे हैं, ठीक है। वाह 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 वाह। मैं तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम और वो तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप खामखा मैदान समझ रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, कनेक्शन बिल्कुल सेम है। हाँ, तवज्जो रखिएगा, ठीक है। तो ये ज़हरा है। अब ये मत समझो कि ज़हरा मांगने गई थी, नहीं। अब जैसे ही हमने फिदक पढ़ा ना पहला, लोगों का चेहरा उतर गया। अब तो ये ते पढ़ेंगे, समझ रहे ना, ता ती, ये पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हम फिदक इसलिए नहीं पढ़ते कि लानत हो, हम फिदक इसलिए पढ़ते हैं ताकि मजलूमों को हक मिल जाए। अगर किसी मौलवी ने हक मारा हो तो हक दे दे, अगर किसी आदमी ने मारा हो तो हक दे दे, अगर किसी ने भाई की जमीन मारी हो तो भाई दे दे। अगर किसी पड़ोसी ने पड़ोसी की जमीन मारी है तो हक दे दे, अगर किसी दादा ने परदादा के खेत मारा है तो खेत दे दे। हम इसलिए पढ़ते हैं भाई, फिदक आप खामखा कहते हैं कि ये लानत के लिए पढ़ा है, फिदक खुद लानत कर रहा है उन पर। तो ज़हरा नजरान वाली मुबाहिला जो लानत थी ना, वो तो चल चुकी थी ज़हरा के साथ साथ, क्योंकि सामने वाले पे लानत बरसनी थी ना। लानत तो चल चुकी थी आसमान से, तो अब ज़हरा के पास रखी हुई थी। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके सामने। ज़हरा के पास बतौर अमानत हकदार की रखी थी। ज़हरा ने जाके चिस्का दिया और फरमाया, अब काफिर कुल्ले ईमान से सवाल कर रहे हैं, अब शराबी कौसरों से सवाल कर रहे हैं। ये ज़हरा का हक है। कभी कल इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे बिल्कुल राइट टाइम 9:10 9:05 में मुझे मिंबर मिल गया, आपसे तो गुजारिश है कि आप हजरात कल थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर बिल्कुल राइट टाइम मुझे मिंबर दे देंगे तो इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक खिदमत हो जाएगी। और उसके बाद परसों मुझे हुसैन डिग्री मजलिस पढ़नी है, तो मैं भी यहाँ से अलविदा हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो जावेद भाई और बड़ा सरोवर भाई, कल अलविदा कहना है आपको, थोड़ी तैयार रहिएगा। एक बार सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले। तवज्जो रखिएगा, राइट टाइम मिंबर देने की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो मामला हमारा घर का है, ठीक है। इस बात को तवज्जो रखिएगा। कल आखिरी मजलिस है तो बिल्कुल राइट टाइम मिंबर मिल जाएगा, तो अर्ज कर दूंगा कल राइट टाइम बिल्कुल मिंबर चाहिए। तो ये हकदार तक लानत थी जो हकदार तक पहुंचा दिया, और हकदार को हक देना भी जरूरी है, क्योंकि पसीने से पहले, सूखने से पहले हक दे दो। भाई लिफाफे की बात थोड़ी कह रहा हूँ, बार-बार लिफाफा समझ रहे हैं, मैं तो हकदार की बात कह रहा हूँ कि हकदार का हक पसीना सूखने से पहले उसे उसका दे दो। फिरोज भाई सुन रहे हैं ना, कहाँ है? हकदार का हक उसके पसीने तक, उसके सूखने से पहले उसका दे दो। मैं आपसे सिर्फ दांत तहसीन की बात कर रहा था, तो पसीने के बाद अगर दांत दीजिएगा तो क्या दीजिएगा, मुझे तो यही पे दांत चाहिए, ठीक है। तो तवज्जो रखिएगा, ज़हरा हकदार को हक देने के लिए गई थी ताकि लानत जो थी वो पहुंचा दी जाए, और लानती को ऐसा हक दिया, ऐसा हक दिया कि आज भी ज़हरा के प्यारे लानत कर रहे हैं, आज भी ज़हरा के दुलारे लानत पहुंचा रहे हैं।
ये ज़हरा है, इनसे ही सलवात है, इन्हीं से लानत है। जो इनके तरफ उठा वो सलवात है, जो इनके खिलाफ उठा जो इनके खिलाफ उठा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो लानत के हकदार है। चाहे नाम जितना अच्छा रख ले, मगर ज़हरा से टकराने के बाद वो बुरे ही हो जाते हैं। और ज़हरा के टकराने के बाद इतने मनहूस हो गए कि हमने उल्टे सीधे नाम रख लिए, गुल्लू सुल्लू, हाँ, पता नहीं और कौन कौन से नाम हमने रख लिए। ठीक है, चांद सूरज, और नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम हमने रख लिए। खुदा की कसम नाम की बात है, चांद के पास जुबान नहीं है भाई, वरना जमीन पे उतरता तो खुदकुशी के ऊपर सवाल पड़िएगा। देखिए हमारे बरादर अजीजों की आमद है। भाई रसूल राजी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है। ये नामों की भी अजब आदत है, बुजुर्ग से जो नाम टकराए उस वक्त में भले अच्छे हों, मगर हमने इतना पूरा उनके ऊपर लानत किया कि बच्चों के नाम रख लिए हमने, गड्डू सड्डू, पता नहीं भोलू, ऐसे ऐसे नाम रख लिए, मगर वो नाम ना रखे क्योंकि वो लानती हैं। देखा हमारा अदब। और चांद को अच्छा होगा जुबान नहीं है। अली अब्बास भाई, वफा भाई, चांद के पास जुबान नहीं, वरना जमीन को उतर के खुदकुशी कर लेता। बच्चे कैसे कैसे नाम है चांद, हाँ नाम अजब अजब रख लिए। नाम है हया और काम सारे बेहया। हाँ उठा के देखिए आप, नाम हमसे अच्छा कौन रखेगा? अली तुम्हारे पास, हसन तुम्हारे पास, हुसैन तुम्हारे पास, जैनुल आबिदीन तुम्हारे पास, मोहम्मद बाकिर तुम्हारे पास, जाफर सादिक तुम्हारे पास, अली रजा आपके पास, मोहम्मद नबी आपके पास, अली नबी आपके पास, अस्करी आपके पास, नबी आपके पास, मोहम्मद आपके पास, अस्करी आपके पास, और ज़हरा आपके पास, कुबरा आपके पास, सुगरा आपके पास, रज़िया आपके पास, ज़किया आपके पास, बतूल आपके पास, सारा आपके पास, मरियम आपके पास, हव्वा आपके पास, सकीना आपके पास, सुबैना आपके पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे नाम तो आपके पास है, फिर भी आप पता नहीं उल्टे सीधे नाम अपने बच्चों के क्यों रख रहे हैं। प्यार में रखा जा रहा है, बेटा है जाहिल और नाम आलिम। देख रहे हैं? ये नामों के साथ गलत हो रहा है। नाम अपने बच्चों का अच्छा रखो, क्योंकि रोज़े महशर वो बच्चे भी आप करेंगे। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 3 तरीके के बच्चे। एक वो जिन्हें इल्म से दूर रखा गया, एक वो जिन्हें कुरान में पढ़ाया गया, और एक वो बच्चे रोज़े महशर अपने बाप को आप करेंगे कि जिनके नाम अच्छे ना रखे गए। क्योंकि नाम अच्छे रखो, क्योंकि करोड़ों के भीड़ में अच्छे कुरान बुलाए जाए। अब ईमानदारी से बताइए, अगर रोज़े महशर का भीड़ हो, फरिश्ता खड़ा हो, नाम आया मालिक और बोले लड्डू हाजिर हो, ईमानदारी से बताइएगा। एक बात, अल्लाह न करे किसी का नाम हो, अगर होगा भी तो भैया मुझे अपना भाई समझ के माफ करना। अगर रोज़े महशर भीड़ के आलम में हो जाए, लड्डू इब्ने बबलू हाजिर हो, भाई अगर हाजिर हो तो कितना खराब लगेगा। और बच्चों को उस वक्त में, आज आप हंस रहे हैं मगर उस वक्त में शर्मिंदगी होगी। तो मेरे नाम अगर अच्छा रखा होता तो फरिश्ते अच्छा बुलाते, तो उस वक्त बच्चे आपको देख के शिकवा करेंगे, बाबूजी इन्होंने मेरा नाम खराब रखा। अब अगर कितना अच्छा हो कि बुलाया जाए, अली इब्ने अली हाजिर हो, फातिमा हाजिर हो, तो फरिश्ते तो नाम सुन के आधे डर जाएंगे कि फातिमा है, इनका नाम अली है, इनका नाम हसन है, इनका नाम हुसैन। अब्बू भाई गौर कर रहे हैं? नाम अपने बच्चों का अच्छा रखो। लिल्लाह आपसे गुजारिश है, अगर अभी भी नाम हो तो प्यार में भी वैसे नाम ना बुलाओ जो मोहल्ले वाले बुलाने लगे। एक बार नीकपुर हमारे गाँव में, ये लोग बैठे हुए हैं, वहाँ एक बच्चे का नाम था बहुत अच्छा, और उसको लोग बुलाने लगे गोलू गोलू,
और आज तक वो गोलू है, आज तक उनका ओरिजिनल नाम ना पता चल पाया। अब अगर थोची से मैशर आवाज दिया जाए गोलू हाजिर हो तो कितना खराब लगेगा। कोशिश करो कि लिल्लाह अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, क्योंकि बच्चों का नाम अच्छा रखोगे आप तो मैशर में अच्छे से बुलाया जाएगा। नाम अच्छा रखो, वरना हुसैन ने अपने बच्चों के नाम या तो अली रखा या फातिमा रखा। क्या कहना चाहते हैं जिंदाबाद। यही तो पूछा था ना कितने अली हो, हमने तो करबला में 3 अली मार दिए। जब चौथे इमाम से पूछा गया तुम्हारा नाम, तो फरमाया मेरा नाम अली है। अरे हमने 2 अली करबला में मारा, का वो मेरा भैया था, का एक का अली अकबर था, एक का अली असगर था। हुसैन ने अपने सारे बच्चों के नाम अली रखे, या हुसैन ने अपने सारे बच्चियों के नाम फातिमा रखे। फातिमा सोरा, फातिमा कुबरा। अपने बच्चों के नाम अच्छा रखो ताकि बुलाया अच्छा जाए। उन्हें प्यार मोहब्बत में भी बुरे नाम से ना बुलाओ। प्यार में ही बुलाना हो तो अली बुला लो, प्यार में ही बुलाना है तो हसन बुला लो, प्यार में ही बुलाना है तो हुसैन बुला लो। इनसे प्यार का क्या फायदा। ये तो इतने नाम प्यारे हैं कि बोलने पर भी सवाब है, इतने प्यारे नाम हैं। मगर मेरे अजीजों, सोचो नाम रखने के ऐसे असरात हों, मगर जिनका नाम था उन्हें दुनिया ने इतना सताया, दुनिया ने इतना सताया कि मेरे चौथे इमाम को कहना पड़ा कि काश कुरान मजीद में हम पे जुल्म का भी होता ना, क्या बैठ पे जुल्म करो तो दुनिया इतना जुल्म ना करती। उलमा की मौजूदगी में मेरे बड़े भाई बैठे हैं मेरे पास में, पूछना इनसे बाद में कि सैयद सज्जाद ने कैसे कैसी मुसीबतें बयान की हैं। मैं लगातार 3 दिनों से फातिमा ज़हरा के मसाइल पढ़ रहा हूँ, मगर आज एक भाई की फरमाइश है कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि हुसैन का दिल कैसा था, हुसैन की प्यास कैसी थी। सिर्फ आज 2 से 3 मिनट मसाइल पढ़ूंगा और मजलिस तमाम कर दूंगा। नाम के असरात हैं, शायद यही वजह है कि जब फातिमा दरबार में आई है ना तो किसी ने कहा फातिमा आई है, तो किसी ने कहा कौन फातिमा, कब मोहम्मद की बेटी फातिमा आई है। अज़ादारों, कितने मनहूस थे वो हाथ जिन्होंने आग दरे सैयदा पे लगाए, शोले शाले गरीबा में निकले। सोचा आपने कितनी मनहूस है वो हाथ। ज़हरा आवाज देती रही, क्या तुम उस घर में आग लगा दो जिस घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ बीवी, हम उसी घर में आग लगा देंगे जिस घर में आपके बच्चे हैं। ये अदादारों तारीफ बताती है, चलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा, शहजादी दरो दीवार के बीच में आ गई। जब होश से आंखें खोली न तो फरमाया मेरा अबुल हसन कहाँ है। तो सही उठने लगी, एक मरतबा फिर बैठी, बटन पे हाथ रखे था, मेरा मौसम शहीद हो गया, मुसलमानों ने मेरा मौसम मार दिया। कल पढ़ूंगा फातिमा ज़हरा की वसीयत, कल मुकम्मल मसाया पढ़ूंगा फातिमा ज़हरा के। 3 दिन से 4 दिन से मैं आपको बचाते चला आ रहा हूँ कि मैं सख्त मसाया न पढ़ूँ, सख्त मसाया न पढ़ूँ, मगर अल्लाह कल मुझे रोकने की कोशिश मत करना। कल मैं मुकम्मल फातिमा ज़हरा की शहादत पढ़ूंगा। फातिमा ने बदन पे हाथ रख के कहा फजा मेरा मौसम शहीद हो गया, फजा मेरा मौसम शहीद हो गया। अज़ादारों, एक जुमला पढ़ूं। जब फातिमा जाने लगी ना तो 17 वसीयतें की हैं फातिमा ज़हरा ने। उलमा बैठे हैं, मैं कल पढ़ूंगा 17 वसीयतें, मगर सिर्फ आज एक वसीयत सुनो, कल 16 वसीयत पढ़ूंगा। अज़ादारों, फातिमा फरमाती है अबुल हसन को देखकर, ए अबुल हसन, ज़हरा जा रही है। अबुल हसन, रात को हो सके तो मेरे हुसैन के पास सोइएगा। सिर्फ एक मसाया आज पढ़ूंगा, 16 वसीयतें कल पढ़ूंगा। मजलिस तमाम हो रही है, सब अल्लाह सब मसाया नहीं पढ़ूंगा। अबुल हसन ज़हरा जा रही है, अबुल हसन कोशिश तो मेरे हुसैन के पास सोना। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए अबुल हसन मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। अबुल हसन रातों को उठे तो मेरा हुसैन कहता है अम्मा प्यास, अम्मा प्यास, ए अम्मा प्यास। अब समझो हुसैन को प्यास कितनी लगती थी। पढ़ो मसाया
अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अब मसाया पढ़ने जा रहा हूँ, कलेजा संभालना, बस कुछ लम्हों में मजलिस मुल्तवी होने जा रही है। ये रज़ादारों तारीख बताती है कि अब समझे हुसैन को प्यास कितनी लगी थी। ज़हरा ने वसीयत किया है अली से, मगर रज़ादारों करबला के जंगल में सबने हुसैन से शिकवा किया है कि मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। अली अकबर ने कहा बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए ना तो मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। इमाम ने फरमाया अकबर जरा अपनी जुबान मेरी जुबान में डाल। रज़ादारों जैसे ही डाला ना अकबर ने फौरन खींच लिया। फरमाया बाबा आपकी जुबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। ये रज़ादारों में अली अकबर के मसायब नहीं पढ़ता। रज़ादारों जहाँ भी अशरे ऊला को खिताब करता हूँ, अशरे मुहर्रम पढ़ता हूँ, वहाँ एक बार 2 मसायब जरूर पढ़ता हूँ। एक अली अकबर के मसायब, एक जनाब सगरा की रुखसती, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ता। क्योंकि रज़ादारों अल्लाह न करे कहीं जवान अकबर का मसायब पढ़े और बुजुर्ग इमाम हुसैन के मसायब सुने, मगर मैं अली अकबर के मसायब में नहीं पढ़ूंगा। एक जुमला कहना चाहता हूँ। फरमाया हुसैन का एक जुमला है ना, जैसे ही अकबर दूर हुए, फरमाया अकबर जब से तू पैदा हुआ था जानता है मैं क्या सोचता था? क्या बाबा? क्या मैं सोचता था मैं करीम का बेटा हूँ, तू हुसैन का बेटा है। मैं सोचता था मेरे लाल मुझसे कुछ मांगे और मैं तुझे दूं, मेरे लाल मुझसे कुछ मांगे और मैं दूं। पूरी जिंदगी हुसैन ये सोचता रहा, मगर एक बार करबला के जंगल में तूने मांगा भी तो पानी मांगा। अब सोच कौसर का बेटा और तुझे पानी ना पिला पाए। अकबर खुदा हाफिज अकबर। अदादारों समझे हुसैन कितने प्यासे। अकबर ने अपनी जुबान खींच ली है। फरमाया बाबा खुदा हाफिज बाबा। अदादारों करबला के जंगल में हुसैन ने सबसे कहा, हुसैन से सबने कहा, मगर हुसैन ने किसी से नहीं कहा। अब वो मजलिस तमाम होने जा रही है, मगर हुसैन ने तुम्हें सिर्फ करबला के जंगल में 3 बार याद किया है। जानते हो हुसैन ने अपने शियों को 3 बार याद किया है। पहली मंजिल पे कहे मेरे शियों अगर तुम करबला में होते तो देखते मैं असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस तमाम होने जा रही है। काश तुम करबला में होते तो मैं देखते अपने असगर के लिए पानी कैसे मांग रहा था। दूसरे मरहले पे फरमाया शियों, अब कहा आईना आईना शीयती अना कतीलुल अबरा। शियों कहाँ थे मुझे रोला रोला के मारा गया, शियों मुझे तड़पा तड़पा के मारा गया। जानते हो तीसरे मरहले पे हुसैन ने तुम्हें कभी याद किया? हुसैन ने एक मरतबा जब रुखसते आखिर के लिए आए ना तो सैयद सज्जाद को देख के फरमाया था सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अजरुकुम अल्लाह। इजाजत है अब एक मसाया पढ़ने जा रहा हूँ, मजलिस तमाम हो रही है। ये तो हुसैन के प्यास की आपने सुन लिया। संभालना कमजोर दिल वालों मुझे माफ करना, मेरी मजबूरी है ये मसाया पढ़ना। एक भाई ने कहा है मुझसे, मगर जानते हो हुसैन का कलेजा कैसा था? सबसे प्यास सुनी है ना हुसैन की, मैं पढ़ूं हुसैन का कलेजा कैसा था। दर्द के परवरदिगार हुसैन का कलेजा मैंने किताब में पढ़ा है। लहूफ किताब का नाम, अरबी में भी है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, कहीं मिल जाए जाना पढ़ लेना। मगर मैं आराम से पढ़ूंगा। अगर तुमने किताब पढ़ लिया तो पढ़ते पढ़ते रो दोगे। जो मैं पढ़ते पढ़ते रोया हूं फिर मैं पढ़ रहा हूं। रसूल खुदा का 2 इराबी लड़ते हुए रसूल के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ये उठनी मेरी है। मजलिस तमाम हो रही है। दूसरा कहता था या रसूल अल्लाह ये उठनी मेरी है। नबी ने कहा कैसे पता चलेगा उठनी किसकी है? एक इराबी आगे बढ़कर कहता या रसूल अल्लाह इस उठनी को नहर करा लो, इस उठनी के दिल में 2 सुराख मिलेगा। नबी ने फरमाया अगर नहीं मिला तो वो कहता या रसूल अल्लाह अगर ना मिला ना तो इस उठनी का पैसा मैं इसे दे दूंगा। नबी ने हुक्म किया नहर करने का। उठनी नहर की गई। नहर करने के बाद दिल को निकाल के नबी की हथेली पे रखा गया। जैसे ही हथेली पे रखा गया नबी ने दिल को देखा तो दिल में 2 सुराख था। नबी ने जैसे ही दिल में 2 सुराख देखा, एक मरतबा दौड़ के ये राबी को गले से लगा के कहा ये बता गैब की बातें या नबी जानता है या इमाम जानता है, तुझे कैसे पता चल गया कि इसके दिल में 2 सुराख है? वो कदमों में गिर के कहता या रसूल अल्लाह आप ही ने तो जुम्मे के खुतबे में कहा था संभालना अपने आप को। आप ही ने तो जुम्मे के खुतबे में कहा था मजलिस तमाम हो रही है। आप ही ने तो कहा था जुमे के खुतबे में कि अगर किसी जानवर के सामने उसके
माबूद तू ऐसा है तुझे हसन का वास्ता, माबूद तू फतीमुल एहसान है तुझे हुसैन का वास्ता, माबूद तू फातरुल समावात वल अर्द तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता, माबूद जो बीमार उनको सेहत शिफा फरमा, जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार है उनकी जानो मालो इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, माबूद परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा, हमारे उलमा का साया हमारे सरों पे दायम व कायम रख। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, यहाँ जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजी अता फरमा, जो बेरिस्क बैठे हैं उनके रिस्क में इजाफा फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, मेरे माबूद जनाब अली अकबर के कलेजे का वास्ता है, मेरे माबूद मेरे नौजवानों के कलेजे को मजबूत फरमा, इनके बाजुओं को मजबूत फरमा, मेरे माबूद इनके जुबान में कुव्वत मीसा में तम्मार अता फरमा। माबूद तुझे हबीब इब्ने मज़ाहिर का वास्ता है, मेरे माबूद मेरे बुजुर्गों को सलामत रखना, इनका साया दाया मुकायम रख। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, मेरे माबूद अब इतनी जोर से आमीन कहो कि तुम्हारी आवाज हवा की दोष पे मोहम्मद अरबी के रोजे से टकराए। माबूद तुझे वास्ता है इन अज़ादारों के अश्कों का वास्ता है, जल्द अज जल्द रोज़ाए फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, जल्द अज जल्द रोज़ाए फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, जल्द अज जल्द रोज़ाए फातिमा ज़हरा की तामीर फरमा, दुश्मन फातिमा ज़हरा को निस्तो नाबूद फरमा, आखिरी उज्जत इमाम ज़माना का जोर अता फरमा, अंसार में हम सबको शुमार फरमा। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जावेद भाई के भाई का नाम वजीर हसन, ठीक है, अहमद हसन की रूह पर सारे सलाम।